पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे जो स्क्रैप डीलर हैं उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। ख़ास करके जो मंडी गोबिंदगढ़ की स्क्रैप एसोसिएशन है उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और स्क्रैप एसोसिएशन से राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਲੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਬਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। गुप्ता जी, वैसे क्या दिक्कत क्या आ रही है? जीएसटी के पोर्टल के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बारे में पहले बताइए। ਸਰ GST ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੰਥਲੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦਾ ਹੈ GTR 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। GTR 1 ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2A ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ 3B ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਹਨੇ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ITC ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ, ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਓਕੇ। तो क्या समझा जाए, जो पोर्टल है उसमें खामियां हैं? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਖਾਮੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ETO ਸਾਹਿਬ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾ 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 ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਨਿਆਏ ਹੈ। तो आपको कब से ये दिक्कत आ रही है? ये जब से पोर्टल शुरू हुआ था तब से दिक्कतें आ रही हैं। हमें 7 साल के लिए तो लाइबल बना दिया गया है। अगर आज हमने कोई माल लिया है 2017 में तो सरकार ने हमें कहा जी आप 7 साल के लिए आपकी लाइबिलिटी बनती है, जब तक 7 साल के अंदर हम आपसे कभी भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए 7 साल का पीरियड एक बहुत लंबा है। मान लीजिए किसी का उड़ीसा से, क्योंकि वन नेशन है कहीं से भी माल ले सकते हैं हम उड़ीसा से माल आता है, मान लीजिए बिहार से माल आता है। 7 साल बाद हम किसको जाके ढूंढेंगे कि उसने टैक्स भरा कि नहीं भरा? सरकार की असेसमेंट होती नहीं है, हम उसमें कैसे जिम्मेवारी करें? हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। डिजिटल इंडिया के अंदर जब रिटर्नें भरती हैं, हम लोग 12 GTR 1 भरते हैं, उसके बाद 12 3B भरते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमें लाइबल बना दिया जाता है जी कि आप 7 साल की लाइबल है और अपना टैक्स भरिए। हम डिजिटली आप 1 क्वार्टर बाद बता दीजिए हमारे को, 2 क्वार्टर बाद बता दीजिए कि भैया आपके बंदे ने ऐसे ऐसे डिफ़ॉल्ट किया है, तो आप उसको समझाइए। हम कैसे उसको पकड़ लेंगे साहब? हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है इस चीज़ के लिए। तो आपने इस दिक्कत के लिए किस किस से मुलाकात की, कहाँ कहाँ गुहार लगाई? केंद्र सरकार को क्या कुछ लिखकर भेजा है आपने? हाँ, हमने फाइनेंस मिनिस्टर मैडम सीतारमन जी को मिलने की कोशिश की, अनुराग ठाकुर जी को मेमोरेंडम दिए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर चीमा साहब को मेमोरेंडम दिए हैं, जितने कमिश्नर्स हैं उच्च पदों पर है उनको जाकर हमने इस बात के लिए मेमोरेंडम दिए कि सर इस रिगार्ड कुछ कीजिए। लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनवाई ही नहीं होती कहीं भी। हर एक बंदा कहता है हाँ जी हो जाएगा, कुछ नहीं होता। केंद्र की तरफ से भी आपको कोई भी जवाब नहीं आया? नहीं, अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है कि हम इस मामले में, क्योंकि मुझे लगता है जब इन्होंने GST लगाया तब इन्होंने ग्राउंड लेवल पर आकर इस बात की चेकिंग ही नहीं की है कि क्यों ऐसी डिफ़ॉल्ट हो रही है, कहाँ कहाँ दिक्कतें आती नीचे ग्राउंड लेवल पर, कहाँ दिक्कत है, ये कैसे एप्लीकेबल होगा उस बात की। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो भी सरकारें चलती हैं वो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स इस मामले में वो करते ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं है। अगर ब्यूरोक्रेट्स थोड़ा ध्यान दें, हमारे पास एक उच्च स्तरीय मंडल आए, कोई कमेटी बन के आए कि आप बताइए आपकी डिमांड्स क्या हैं, आपको कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, तो इस प्रॉब्लम की सॉल्व हो जाएगा सब।
तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको क्या सोल्यूशन लगता है अभी इसमें से, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हटानी चाहिए, या पोर्टल में क्या सुधार करना चाहिए, या सरकार को आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मेरी सरकार से अपील है, एक तो हम टैक्स देना चाहते हैं, हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपने जो कमीशन बेस काम करते हैं, सरकार की एक तो टैक्स की रेशो ज़्यादा है, इसको मिनिमम स्लैब में लाया जाना चाहिए। सेकेंडली सर, ये ना मैं आपको बताता हूँ, ये सेकेंडरी स्टील और प्राइमरी स्टील दो तरह से स्टील बनता है। जो हमारे यहाँ स्टील बनता है ये सेकेंडरी स्टील है। इसमें जब ये मैन्युफैक्चर से कोई चीज़ निकलती है, जैसे स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, तसला, बाल्टी, पीपा, ये एक बार टैक्स दे के निकलता है, ठीक है ना। जब ये पुराना हो जाता है, गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये रीअसेंबलिंग होने के लिए दोबारा फर्नेसेस में आता है। जबकि जो प्राइमरी स्टील है वो लोहा, आयरन और कोयले को मिला के ब्लास्ट फर्नेस में डाल के उससे स्पंज आयरन बनता है और उससे बनाया जाता है। तो वो फर्स्ट स्टेज में टैक्स पे हो जाता है उनका। जो हमारे वाले में ये ऑलरेडी टैक्स पेड है, तो इसमें दिक्कत ज़्यादा है। नंबर वन, जो हमारा फेरी वाला जो कलेक्ट करता है घरों से, उसके पास वो अनरजिस्टर्ड है, उसके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, वो बेचता रजिस्टर्ड को है। या तो उसको आरसीएम के अंदर लाया जाए कि वो उसका टैक्स जमा करा के रिवर्स चार्जेस मैकेनिक से वापस ले ले। लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है कि उसके पास कैश की लिमिट 2 लाख रुपए की है कि आप 1 ईयर में 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। उसके पास कैश की दिक्कत आ जाती है, वो कैश इतना लाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ड्यूल इकॉनमी है। कबाड़ी तो कहता है मुझे कैश में पैसे दे दे, मैं चेक नहीं जानता कोई भी। अगर मैं 300 रुपये का माल दिया तो मुझे 300 दे दे, 500 का माल लिया मुझे 500 दे दो, वो इसको नहीं मानता। अब हम ये जो हमारा रजिस्टर बंदा है जो पीछे बैठा हुआ हमें माल भेजता है, उसके पास इतना फंड ही नहीं है, कैश वो जमा करा नहीं सकता। तो फंडामेंटल गलती तो यहाँ पे है। या तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहे भी तू जिसके कैश के वोचर जमा कर और क्या कैश जमा करा दे, फिर तो बात बन सकती है। क्योंकि अगर हम कोई भी टाउन प्लानिंग के अंडर आते हैं तो हमें पता लगता है 25 साल बाद या 10 साल बाद, 5 साल बाद हमें यार यहाँ इतनी कारें बढ़ जाएंगी, तो हम उसकी पार्किंग की पहले सोचते हैं कि इसकी पार्किंग कहाँ खड़ी होंगी ये कारें। ऐसे ही सबसे नीचे लेवल पर उसको रास्ता दिया जाए ताकि चोरी ना हो, वो सही रास्ते पे चले। तो अभी आपका अगला स्टेप क्या होगा? पहले भी आपने मुलाकातें की हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, सरकार से भी गुहार लगाई है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आगे का स्टेप क्या होगा? सर, हम अपील में ही हैं, हम अपील ही करते रहेंगे। ना तो हम रोड जाम करेंगे, ना रोड पे बैठेंगे, हम सरकार से अपील ही करते रहेंगे कि सर हमारा सुनिए, हम व्यापारी हैं, हम इनकम टैक्स पे ही हैं, हम सरकार को कुछ देते हैं, हम लेते नहीं है सरकार से। बदले में हम क्या देते हैं सर? अगर हमारी सेकेंडरी स्टील है, ये हज़ारों लोगों को रोज़गार देती है, सरकार की बिजली कंज्यूम करती है, उसके बाद क्राइम को कम करने में मदद करती है। जब लोगों को रोज़गार मिलता है वो क्राइम की तरफ नहीं जाता है, ठीक है ना, क्राइम को कम। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये कबाड़ सेकेंडरी स्टील ना गलाए, रिसाइकलिंग करे, तो यहाँ पर रखने के लिए जगह नहीं होगी इस कबाड़ को। आप देखिए यूरोपियन देशों के अंदर इस कबाड़ को समुद्र में फेंका जाता है कि फेंक दो इसको, रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, इससे बीमारियां फैलेंगी। हम देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे को बजाय अप्रिशिएट करने के हमारे को जूते बढ़ते हैं और हमारे को डिपार्टमेंट तंग करते हैं। हम इस चीज़ की अपील करते हैं कि सर हमारे को रिलीफ दिया जाए हम लोगों को, ताकि हम इस सफाई में, देश के अभियान में हम कुछ ना कुछ करके दे रहे हैं, पुराना लोहा को नया बना के दे रहे हैं, जो कि एक भलाई का काम है। और तो बातचीत हुई है राजेंद्र गुप्ता जी से, जिन्होंने सारी बातों पर संक्षेप से बताया कि कैसे कैसे उनको दिक्कत आ रही है, और एक बड़ी बात उन्होंने बोली है कि अपील की है कि वो एक समाज में जो ये एक गंदगी टाइप की चीज़ होती है, जैसे लोहा हो गया, कबाड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसको सफाई अभियान में शामिल करने की गुहार लगाई है कि समाज को साफ़ करने का भी एक तरफ से काम करते हैं। तो जो उनको इतनी बड़ी मार पड़ रही है उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक बड़ी गुहार प्रेस के ज़रिए लगाई है कि इसका सल्यूशन जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि जीएसटी आने के बाद ये पिछले लगातार 7 सालों से इस चीज़ को झेल रहे हैं और लगातार अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हल अभी तक नहीं हुआ। आप बने रहें पंजाब केसरी के साथ, मेरे साथ कैमरा पर्सन अमरजोत सिंह।